बैठो बैठो। ठीक है भाई। some important necessary characters of activated complex. Some important necessary character of activated complex. Activated complex. Number 1. When reactant molecules convert into product, then these are passed through a intermediate. These are passed through a intermediate stage. These are passed through a intermediate stage. This state is called activated complex. सेकंड पॉइंट, हाँ भाई, जब प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट, तो बीच में क्या बनती है उसकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, activated complex are formed by the collision between reactant active molecules between active molecules having energy equal to or more than threshold energy. More than threshold energy. Second point, next point. In activated complex, particles are bonded by weak bonds. Weak bond. Next, during the
Next point. During the mechanism to convert reactant molecules into product. Reactant molecules into product. The activated complex has maximum potential energy. Next, activated complex has short life. Activated complex has short life, therefore it dissociates into product by a definite rate. Rate. Next, if 1, 2 or 3 molecules take part in the formation of activated complex. Take part in the formation of activated complex. Then reaction is called unimolecular, bimolecular or trimolecular respectively. ठीक है भाई, अब इनमें से कोई सा ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो, क्योंकि अभी हम 2-3 दिन से जो पढ़ रहे थे वो यही पॉइंट समझ पढ़ रहे थे, तो उनमें से कोई सा ऐसा पॉइंट है जो ऊपर से निकल रहा हो? हाँ जी, नहीं है भैया कोई पॉइंट? अब नेक्स्ट टॉपिक डालें आप कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन फेज। बेटा अब आपकी 2 थ्योरी रह गई हैं, एक कॉलिजन थ्योरी है और दूसरी एसीटी। ठीक है, अब कॉलिजन थ्योरी में 2 पॉइंट है, एक कॉलिजन और एक मॉडिफाइड कॉलिजन, और एसीटी में एक आपके एसीटी है और एक मॉडिफाइड है। ये टोटल आपका चैप्टर इसमें रह गया। कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। देखिए, according to this theory, during a reaction reactant molecules take part in collisions.
collision. During this process, some bonds take part in dissociation. Some bonds take part in dissociation. Some bonds take part in dissociation, and new bonds are formed. Collision theory is explained on the basis of kinetic theory of molecules. According to this, first of all, molecules come closer to each other to collide with each other. That is the collisions are first step in a reaction. Collisions are first step in reaction. The result of this the rate of reaction is directly proportional to number of collisions. But the rate of reaction is not increased. Equal to increasing in number of collisions. Increasing in number of collisions because all collisions are not effective. Only the collisions in which activated complex is formed. ब्रैकेट में लिखेंगे इसमें collisions between active molecules. Collisions between active molecules. Only the collisions in which activated complex is formed are effective collisions.
ब्रैकेट के बाद आर इफेक्टिव कॉलिजन। Paragraph change. The collision theory depends on following factors. The collision theory depends upon following factors. Following factors. Number 1, number of collisions between reactant molecules. ब्रैकेट में collision frequency. Second, activation of molecules. तीसरा, orientation of molecules during the reaction. ठीक है भाई, बोलो डाउट इसमें। यहां तक कोई डाउट? देखो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि क्या करेंगे, कॉलिजन थ्योरी को एक्सटेंड करेंगे। तो सर आपको दिखाई दे रहा है का अच्छा है बेचारे लाल जो 3 बार आते नीचे लग गए अपने पैर पर लेके गए। चलो कोई देखिए आपको यहाँ पर क्या है, कॉलिजन थ्योरी। अब यहाँ पर मैथमेटिकल अपन स्टार्टिंग करें तो हम यहाँ 2 कंडीशंस मानते हैं, a प्लस k मे भी पॉसिबल, दोनों रिएक्टेंट जो वो सिमिलर है। क्या बन गया फॉर्मूला, a प्लस b क्या बन गया, दोनों क्या हो अलग। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, रेट किसके बराबर आएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, इसमें एलिमेंट्री कंसेप्ट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k a की पावर 2 और dp dt is equal to k a और b। ठीक है, if a की कंसंट्रेशन चाहे b की कंसंट्रेशन दोनों की हम 1 मोल पर लीटर ले लें तो क्या होगा, यहाँ पर dp अपॉन dt किसके बराबर आ जाएगा भैया, k के बराबर। और dp अपॉन dt किसके बराबर था, r के, ये r के बराबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, द रेट ऑफ रिएक्शन r इज इक्वल टू z क्यूब के बराबर होगा, जिसमें z क्या होता है, z इक्वल कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या होगा ये, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ कॉलिजन्स in 1 second in 1 liter container are called collision frequency। ठीक है भैया, क्या होगा ये, collision frequency। कोई डाउट है इसमें यहाँ पर? यदि कॉलिजन किसके बीच में हो रहा है, 1.1 मतलब दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इसके लिए प्रैक्टिकल वैल्यू √1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर
एन डैश का स्क्वायर सी बार, बार का मतलब एवरेज, ठीक है भाई। यहां पर सिग्मा क्या है, एवरेज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। अब दोनों एक जैसे हैं तो दोनों की रेडियस को ऐड करके हम क्या करेंगे, डायमीटर निकाल लेंगे, कोई इलेक्ट्रिक नहीं करना। लेकिन यदि अलग अलग होते तो इसमें हम करते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल, कितनी एक्टिव मॉलिक्यूल से उनके नंबर। सी क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। यदि आपने केटीजी पढ़ी हुई हो तो एवरेज वेलोसिटी सी बार इक्वल टू होती है 8 बाई पाई आरटी अपॉन एम डब्ल्यू मोलर। हमने यहाँ एम लिख दिया, एम का मतलब यहाँ क्या है, मोलर। यदि हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1.1 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार होल स्क्वायर इनटू 8 बाई पाई आरटी अपॉन एम। 8 रूट इसका भाग दें तो रूट करें तो 2√2 हो गया ये, 2√2 से रूट 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2। पाई यहाँ है, इसको अंदर ले जाए, पाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 पाई कट जाएगा, 1 रह जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचा, 2 सिग्मा स्क्वायर एन स्टार स्क्वायर रूट ऑफ पाई आर टी अपॉन एन। ये किसका फॉर्मूला हो गया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जब दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं। यदि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स यदि हैं तो इसका फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा। N1 N2 सिग्मा 1 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 8 पाई आर टी अपॉन एम की जगह यहां क्या है, बात क्लियर भैया, यहां तक तो जाओ। सिग्मा 1 2 वही एवरेज डायमीटर, एवरेज कैसे निकालेंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 का क्लियर भाई। N1 number of molecules of first molecule active molecules और number of active molecules of second। mu क्या है, reduced mass, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन mu इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। ये इसका फॉर्मूला होगा रिड्यूस। ये पढ़ा होगा सर, रिड्यूस मास का फॉर्मूला आपको इसमें है, आ जाएगा, कोई बात नहीं आएगा। हाँ जी, ये किसका फॉर्मूला हो गया आपके लिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के 1.1 और 1.2, 1 से 1 एंड 1 से 2 के लिए दोनों के फॉर्मूले प्रयोग होगा। तो पहले इसको लिखो, फिर अपन क्यू की बात करते हैं। ये फर्स्ट ईयर के बच्चा है,
ठंड के मारे काफ है तो सही है तो फिर भी कुछ जल्दी आ रहे हो कहां तो काम नहीं आ रहा हो नहीं छोड़ के गए को कि अच्छा और बड़ी कहां गए मैं जी छोड़ के मेरे को और ये पहले किसी को छूटा हुआ यहां पे तो दोनों टाइम पे जाते हैं तो वही पहले उनको छोड़ने जा रहा हूं सिस्टर को फिर यहां से दोनों टाइम पे आ जाते हैं अब लोग करो क्लास से छुट्टी को तो कोई ले जा अब देखो क्या क्लास है हां भाई लग गया तो वो तो हमारा कैसे
साथ में खड़े हैं, इनको तो क्यों बोलना है? साहब बात ना करें। अच्छा, ये बात कर रहे थे नहीं। ना बालक बात करें। बालक वाला तो बालक बता रहा है। हाँ युवा क्या युवा पूरा बिल्कुल ना देखो ये सब अरे देखो नेक्स्ट इसमें अब अपन किसकी बात करते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बाद एक्टिवेटेड फ्रैक्शन। सेकंड पॉइंट इसमें डाल देना Q इक्वल टू एक्टिवेटेड फ्रैक्शन। क्या है? कुछ नहीं है, उसके पॉइंट से पहला पॉइंट Z हो गया इसका, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसका मतलब क्या है, Q इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स को हम स्टार से और नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स को एन से। यदि हम इसको सॉल्व आउट करें तो सॉल्व आउट करने पर इसकी वैल्यू e की पावर माइनस e अपॉन r। माइनस e अपॉन r। क्लियर भाई? दैट इज हमने क्या लिखा था, R इक्वल टू dP अपॉन dt इक्वल टू K और R इक्वल टू Z। क्या हो गया भैया, y इक्वेशन 1 एंड 2 पहली और दूसरी इक्वेशन के बेसिस पर क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू Z। Z की वैल्यू दो फॉर्मूले हो गए अपने पास, एक तो 1.1 का और दूसरा 1.2 का। तो 2 सिग्मा स्क्वायर n स्टार स्क्वायर रूट ऑफ पाई RT अपॉन m e की पावर माइनस e अपॉन RT। ये ब्रैकेट के बाहर, ये रूट में नहीं है, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू n1 n2 सिग्मा 1 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 8 पाई RT अपॉन म्यू e की पावर माइनस e अपॉन RT। ठीक है भाई, ये दोनों में क्या आ गया फॉर्मूले लिख लेंगे। यहां लिख लेना व्हेन सेम मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड, और इसमें लिख लेना व्हेन डिफर मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड। पहले इसको लिख लेना, बीच में लाइन लिख लेना कि व्हेन सेम मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड तभी वाला फॉर्मूला, व्हेन डिफर मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड तब नीचे वाला। ठीक है,
रेडी है भैया? चलो रिमेनिंग फिर अपन कल करेंगे।